So, hello, good morning, class. Today we will start our fourth chapter named living and non-living things. So, what are living and non-living things is you have already read about it. कि anything that breathe, anything that grow, anything that can move is called living things. And non-living things can't move, can't grow, can't breathe. So, they are examples of some living things and non-living things. Can you identify these things? He is a baby. Baby is living thing or non-living thing? Living thing. So the baby can breathe, he can move, he can grow inside. Animal, living thing. Flower, butterfly, tree, glass, pen, pot, toy. Okay. So there are some characteristics in which we can differentiate the difference between the living thing and non-living thing. So what are the characteristics of living thing? The first characteristics of living things is, so first we will discuss what is living thing. Thing that we see around us can be divided into two groups. हम जो हमारे आसपास देखते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करा जा सकता है. जैसे आप अपनी क्लास में देख सकते हो तो यहाँ पे हम टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं चीजों को. एक ग्रुप होगा क्या? Living thing. And what is the other group is non-living thing. We all are students, we are living things. Teacher is living thing. Rest of all is non-living thing. The tortoise, the monkey, the family, the bird, the animal, the tree, all are living things. And the toy and the chair and the toy ball, gate and car is some of non-living things are either natural or man-made. अच्छा, लिविंग थिंग्स में भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं दो चीजों में, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग. नॉन लिविंग थिंग में कुछ चीजें नेचुरल होती है और कुछ चीजें क्या होती है, मैन मेड. जैसे कि क्लाउड्स. क्लाउड्स आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? Non-living thing, but it is natural or man-made? Natural. And this board is living thing or non-living thing? Non-living. It is natural or man-made? Man-made. Okay. First, we will read about what is man-made thing. Things such as toys, vehicles, furniture, paper, etc. are made by man. So these things are known as man-made things. जो भी चीजें ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको मैन-मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स जो जिसको कौन बनाता है? नेचर. इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल थिंग. थिंग्स सच एज सन, माउंटेन, हिल, रिवर, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा मेड बाय नेचर. तो इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल थिंग. थिंग्स सच एज सन, मून, माउंटेन, रिवर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. अब नेचुरल थिंग में से कुछ तो नॉन लिविंग होती है और कुछ, जैसे कि सन, मून, माउंटेन, रिवर, ये सब क्या है? नेचुरल तो है बट लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? नो, नॉन लिविंग थिंग. एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर यस. Living things and non-living things are different from each other in many ways. We can differentiate between by understanding the following features. हम कुछ features पढ़ के दोनों में differentiate कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास first feature है movement. Who can move? Living thing can move or non-living thing can move? Yes. Yes. So first movement. Who can move? Living thing can move? Yes. But non-living thing can't move. अच्छा, now you can say कि मैम रिवर में तो मूवमेंट होता है, but how can river be non-living thing? एक्सटर्नल फोर्स. वेरी गुड. जो मूवमेंट उनमें होता है वो कौन सा होता है? एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू होता है. जैसे कि क्लाउड मूव करते हैं. अब क्लाउड इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग. बट हाउ कैन दे मूव?
यस, बाय द फोर्स ऑफ विंड। विंड जब उन पर प्रेशर डालती है तो वो मूव करते हैं। ओके, तो जो मूवमेंट केवल अपने आप होता है वो किसमें होता है? लिविंग थिंग्स में। फूड एंड वाटर। हु नीड फूड एंड वाटर? Living things can't survive without food and growth. Living things only can grow. Okay, we have the certain lifespan. तो हम पहले सबसे छोटे से बेबी होते हैं, फिर हम चिल्ड्रन बनते हैं, थोड़े से यंग बनते हैं, फिर हमारी एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, और एक लाइफ फॉर्म के बाद में सबकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो लिविंग थिंग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ब्रीथ, लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग। फील चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग में कुछ चेंज होता है तो रिएक्ट कौन करता है? रेस्पॉन्स में रिस्पॉन्स कौन करता है? हम करते हैं। अगर टेबल के आगे में थोड़ा सा गर्म कुछ रख दूं, क्या टेबल मूव कर जाएगी? लेकिन अगर आपका हैंड में कुछ गर्म चीज पे रख दूं तो क्या आप अपना हैंड मूव करोगे? यस। तो लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड करती है, नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग करती है ना, बाय लेइंग एग, बाय गिविंग बर्थ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन केवल किसमें होता है? लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। एंड लास्ट लाइफ स्पान। एक सर्टेन लाइफ स्पान किसका होता है? लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग थिंग का कोई लाइफ स्पान नहीं होता, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे कि टेबल है, ये कितने साल चलेगी? कोई फिक्स है क्या? आप इसको जितना अच्छे से यूज करोगे उतने सालों साल चलती रहेगी। नेक्स्ट इज मूवमेंट। All living things need to move from one place to another on their own in search of food and shelter. ये हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने एनिमीज से दूर जाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। जब वो नॉन लिविंग थिंग मूव करती है तो अपने बॉडी के पार्ट्स को क्या करती है? पुश और पुल। अपनी मसल्स को क्या करती है? पुश एंड पुल। प्लांट आर आल्सो लिविंग थिंग सो दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट लिविंग थिंग है बट दे कांट मूव, बट वेरियस प्लांट मूव बाय बीइंग beings and animals such as cat and place to another with her their legs. Fish used to fins to swim. अब कुछ प्लांट्स होते हैं जो मूव करते हैं, जैसे कि क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स मूव करते हैं ना, जैसे कि सनफ्लावर सन की तरफ टूवर्ड्स मूव करता है, तो थोड़ा सा उनमें मूवमेंट होता है बट वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं होते, वो अपनी जगह पे ही, हाँ, वो अपने सर्टेन बॉडी पार्ट्स में ही मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, बाकी एनिमल्स किसके थ्रू मूव करते हैं? बाय देयर लेग्स, एंड फिश बाय देयर fins, and bird by their wings. Good. Next है living thing need food and water. All living thing food and water to grow. Food give us energy to work. अगर लिविंग थिंग कुछ काम कर पा रहे हैं तो उनमें एनर्जी है तो किसकी वजह से? फूड एंड वाटर। बट नॉन लिविंग थिंग को फूड एंड वाटर की नीड नहीं होती है। अच्छा, हम तो एनिमल्स को फूड एंड वाटर चाहिए होता है, या प्लांट्स को भी चाहिए होता है? फ्रॉम वेयर दे गेट फूड एंड वाटर? वाटर दे गेट अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड से वो वाटर अपने स्टेम के थ्रू, अपने जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। बाकी खाना किस किस से मिलाते हैं, बनके बनता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। इनका जो ग्रीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं, इसके सबको साथ में मिला के वो अपना क्या बनाते हैं? फूड। प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं प्लांट्स को हम? ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और इधर एनिमल्स, सो वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हमें क्या बोला जाएगा ह्यूमंस को? ओके, यहाँ तक यू कैन ऑल कैन अंडरस्टैंड? समझ आया सबको? नेक्स्ट इज
ह्यूमंस सॉरी लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग कोई सी भी हो, जैसे वो बर्ड्स है, जैसे ह्यूमन है, जैसे एनिमल है, जैसे प्लांट है, वो ग्रो होती है। जैसे कि आपने बहुत छोटा सा सीड आपने सॉइल में डाला तो सबसे पहले बेबी प्लांट बना, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, वो प्लांट बना, प्लांट से वो ट्री बना, और ट्री से वो और बड़ा ट्री बना। लिविंग थिंग में केवल प्लांट्स या ट्रीज ऐसी चीजें जो अपनी थ्रू आउट लाइफ बढ़ते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। लेकिन बर्ड्स, एनिमल, ह्यूमंस की ग्रोथ एक टाइम पे आगे क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद हम नहीं ग्रो करते। ठीक है, all living beings grow in size. A baby is born, it is very small, it is growing to child, then boy and then girl and later man and woman. आपने अपने आप को देखा होगा, आपने अपनी कभी बचपन की फोटो देखी है, कितने से थे आप, बिल्कुल छोटे से बेबी थे, थोड़े बड़े होते होते आप कितने बड़े हो गए हो, एक दिन आप हमारे जितने बड़े हो जाओगे और एक दिन क्या हो जाओगे, ओल्ड, बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम लिविंग थिंग है, हम क्या करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, हम ग्रो करते हैं। एनिमल ऑल्सो ग्रो, जैसे कि एग से क्या निकला, चिक, और चिक से क्या बन गई है। वैसे ही प्लांट, शीट से क्या निकला, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट से, प्लांट से ट्री, ट्री से बना क्या, फ्रूट, फ्रूट से वापस क्या बना, शीट, और शीट को वापस हमने क्या कर दिया, ग्रो कर दिया। प्लांट ऑल्सो ग्रो, अ शीट ऑफ अ प्लांट डेवलप इनटू बेबी प्लांट विच ग्रो इनटू अ बिग ट्री, और बिग ट्री में क्या आएंगे, फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या आएगा, शीट, शीट से वापस क्या बन जाएगा, ब्रीदिंग। All living things can breathe. It is true or false? True, yes. We can't live without breathing. We can't live without oxygen. ठीक है? All living beings take oxygen and give out carbon dioxide. Humans and most of the animals such as cow, tiger, giraffe, etc. breathe through lungs. सारे living things जो होती है वो क्या inhale करती है, ऑक्सीजन, और एक्सेल क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल्स, वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। वही बात आ जाती है, इंसेक्ट जो होते हैं उनके बॉडी में होल्स होते हैं छोटे छोटे, वहां से वो ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल नोन एज स्टैकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। प्लांट कहाँ से ब्रीथ करते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक उनके प्लांट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो ओपन होके क्लोज हो जाता है, यहाँ से वो उनकी लीव में होता है, यहाँ से वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। और फिश कहाँ से ब्रीथ करती है, गिल्स। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो अपने गिल्स के थ्रू ऑब्जर्व करती है। लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंज इन सराउंडिंग। ठीक है, आप जो सराउंडिंग में चेंज हो रहा है उस पर क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। जैसे अभी एकदम से पावर कट हो जाता है तो आप सबका क्या रहेगा, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, क्या टेबल और चेयर भी इसी तरह बोलेगी, नहीं बोलेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सराउंडिंग के चेंज को क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील द चेंज अराउंड देम, सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन हेल्प देम टू फील द चेंज इन सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन से हमारे हमें बताते हैं कि बहुत कुछ चेंज हुआ है सराउंडिंग में। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कोई वीडियो चलाती हूँ बहुत तेज आवाज में, आप सबका रिस्पॉन्ड क्या रहेगा, यू ऑल विल क्लोज योर ईयर्स, क्योंकि आपके जो सेंस ऑफ ऑर्गन है, आपके जो ईयर ने आपको ब्रेन को मैसेज दिया कि आवाज बहुत तेज है, वी कांट बियर इट। तो आपने क्या कर लिया, सबने कान को बंद कर लिया। मैंने आपकी आईज क्लोज करके आपको कुछ गरम गरम हाथ में पकड़ा दिया, आप क्या कर लेंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो नर्व्स है, आपकी स्किन है, तो फटाफट से आपको ब्रेन को मैसेज दिया कि बहुत गर्म चीज है, इसको अपना हाथ खींचो वापस। तो आपके ब्रेन ने मसल्स को मूव करा और आपने अपना हाथ वापस खींच लिया। तो ये आप सबकी नर्वस सिस्टम है जो आपका मूवमेंट करवाती है, आपको रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। We sweat and feel hot during summer. We carry umbrella and wear raincoat to protect ourselves from getting wet during the rainy season. आप सबको गर्मी में पसीना आता है, आपकी बॉडी क्या बोलती है ब्रेन को जाके कि बॉडी का जो आउटर टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो गया है, उसको कूल डाउन करना है। तो क्या करता है ब्रेन, हमारे अंदर का जो पानी है, हमारे बॉडी के अंदर का जो वाटर है, वो हमारे बॉडी में स्किन में पोर्स होता है, उसके थ्रू क्या करता है, बाहर भेजता है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाए।
ज्यादा गर्म ना हो। तो देखो अभी आपको अगर सभी को स्वेट आ रहा होगा तो अपने आप को टच करो, आप सब बहुत ठंडे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्वेट। ठीक है, आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है अगर आप स्वेट कर रहे हो। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, अ चेयर विल नेवर क्राई इवन इट इज वर्किंग। ठीक है, आपको हर्ट होता है तो आप क्राई करते हो, लेकिन क्या अगर मैं टेबल को हर्ट करूंगी तो ये क्या क्राई करेगी? We laugh when we are happy, cry when we are get hurt and sad. हम हर चीज में रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं हम क्या करते हैं? लाफ। जब हम सैड होते हैं हम क्या करते हैं? क्राई। ये क्या होता है? रिस्पॉन्स। जो भी चेंज हो रहे हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। रिप्रोडक्शन, जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो अपने जैसा एक और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने ही तरह का एक और ह्यूमन बींग को या फिर एक और लिविंग बींग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होगा तो ह्यूमन जैसा ही बेबी होगा। एप्पल प्लांट का अगर सीड मैंने सॉइल में डाला तो बनाना उगेगा कि एप्पल उगेगा? सेम अपने जैसा ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये टेबल रिप्रोड्यूस कर सकती है? क्या ये वॉल रिप्रोड्यूस कर सकती है? क्या ये बोर्ड रिप्रोडक्शन कर सकता है? नहीं। केवल और केवल जो लिविंग थिंग्स है वही क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच लिविंग बीइंग्स मेक मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। अपने ही जैसे और भी लोग बनाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन गिव बर्थ टू अ बेबी, एनिमल्स इज ओन काइंड। एनिमल्स भी जैसे कि कैट बर्थ किसको करेगी? कैटल को। डॉग जैसे इसमें दिया हुआ है, काव के बेबी को क्या कहते हैं? काव। चिकन के बेबी को क्या कहते हैं? चिक। डॉग के पपी, कैट के। रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? कुछ मैमल होते हैं जो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। बट कुछ एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? बाय लेइंग एग्स। ठीक है, तो एनिमल में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट इज बाय गिविंग बर्थ, अनदर बाय लेइंग एग्स। एग्जाम्पल्स आप अपने आप लिख सकते हैं ना, आपको पता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और ओल्डर क्लास में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट बेटा देखो कैसे होता है, अलग अलग तरह के होता है। कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सीड, कि हम उसका सीड अगर सॉइल में ग्रो करेंगे तो वो ट्री उग जाएगा। ठीक है, कुछ होता है थ्रू स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग क्या होता है? किसका? ये स्टेम पार्ट को कट करके अगर हम ग्रो कर देंगे तो वो वहीं पे प्लांट उग जाएगा। जैसे आप कोरिएंडर घर में उगाते हो, अगर कोरिएंडर कोई सा भी पार्ट कट करके आप सॉइल में लगा दोगे तो वहीं से ग्रो होने लग जाएगा। रोज का, हाँ यस। रूट कटिंग, कई का होता है कि हम रूट्स को कट करके सॉइल में डाल देते हैं, है ना। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, उनकी रूट्स अगर डालेंगे तो हम प्लांट उग जाएगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के प्लांट में 3 वेज है, थ्रू शीट, थ्रू स्टेम और थ्रू रूट्स। लाइफ स्पान, सारी लिविंग थिंग का कुछ ना कुछ लाइफ स्पान होता है, केवल वो उतने ही ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। बाद में उनकी क्या हो जाती है? डेथ बायोलॉजिकल, वो जिंदा नहीं रहते, वो रेस्पिरेशन नहीं करते। उसके बाद में उनको क्या कंसिडर किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग। आप ट्री को क्या बोलते हो? अगर ट्री का बना हुआ कोई फर्नीचर है, ये क्या है? हाउ? क्योंकि वो डेड पार्ट है, डेड बॉडी है, लिविंग थिंग का डेड पार्ट है, तो ये क्या कंसिडर करेंगे हम? नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह ह्यूमन जब ब्रीथ करना बंद कर देते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो ह्यूमन भी क्या बन जाते हैं? नॉन लिविंग। ऑल लिविंग लाइफ अप टू सर्टेन एज, दिस एज लिमिट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। जब तक हमारे सर्टेन, जितना हमारा लाइफ स्पान है, जब तक हम जिंदा रह सकते हैं, वो क्या होता है? हमारा लाइफ स्पान। ह्यूमन बींग्स का अराउंड 50 टू 60 ईयर, ये मान लो 60 टू 85 ईयर्स का लाइफ स्पान होता है। पहले 100 ईयर्स का होता है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब कितना हो रह गया? 60 टू 85 ईयर्स। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट हैव एनी लाइफ स्पान। नॉन लिविंग थिंग का कोई भी लाइफ स्पान
नहीं होता है। अब देखिए बेटा, हमने पूरे चैप्टर में अभी तक ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, और क्या क्या पढ़ लिया एक बार समराइज कर लेते हैं। आपको कितना आया, क्या चीज आपको अच्छे से समझ में आई, एक बार हम इसको वापस से समराइज कर लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से टू पार्ट्स थे? वेरी गुड। नेचुरल थिंग्स आर मेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल man-made things are made by man. For example, all living things grow, respire, feel, reproduction, need food and live in a certain age. ये सब समझ में आया? All living things can grow, respiration, feel and response, reproduction, need food, and have certain lifespan. Non-living things do not eat, do not grow, do not respire, do not feel, do not reproduce. ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। एंड लास्टली यू हैव अ होमवर्क, कि आपको ये होमवर्क में करना है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर दे आर, यहाँ पे राइट इट डाउन है कि लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, बट यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग एंड non-living thing. Penguin is a living thing. How can you say this? It is a living thing. Because it can breathe, it needs food, it can move, it can grow, it can reproduce. And why you can this toaster is non-living thing? Because it is man-made thing. It can't move, it can't grow, it can't breathe. ठीक है? So ये आपको पूरा होमवर्क में करके लेके आना, पॉइंट वाइज आपको रीजन लिख के आना कि why you consider these things are living thing or not living.